اور اب علاقائی بلیٹن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینیٹر ڈاکٹر غوث خان نیازی کی صدارت میں مسلم لیگ نون کے ضلعی عہدیداران کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں گجرانوالہ جلسے میں بھرپور شرکت پر اتفاق کیا۔ ضلع کی تحصیلوں اور تمام شہروں سے مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور کارکنان گجرانوالہ جلسے میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے۔ چودھری ارشد محمود ایڈوکیٹ ضلع صدر لائرز فورم خوشاب کو فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا۔ اجلاس میں ضلع جنرل سیکریٹری ملک کرم الہی بندیال، سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھانوان، ملک طاہر منیر ایڈوکیٹ، حاجی بشیر، ملک فاروق ایڈوکیٹ، سردار انصر بلوچ ایڈوکیٹ سمیت عہدیداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ٹی وی ٹوڈے بنا ایک بار پھر عوام کی آواز۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سیوریج زدہ زہریلے پانی سے کاشت ہونے والی سبزیوں کو تلف کر دیا ہے۔ ٹی وی ٹوڈے کی نشاندہی پر سوئی ہوئی انتظامیہ جاگ اٹھی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم انڈسٹریل اسٹیٹ کے ساتھ 48 کنال اراضی پر سبزیوں کے کاشت کے عمل کا جائزہ لینے پہنچ گئی، جہاں 32 کنال اراضی پر سبزیوں کو سیوریج زدہ زہریلے پانی سے سیراب کیا جا رہا تھا، جس پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فوری طور پر 32 کنال اراضی پر لگی زہریلے سیوریج زدہ پانی کی کاشت سبزیوں کو تلف کر دیا۔ ادھر خیرپور ٹامے والی میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیرپور ٹامے والی کے نواحی علاقہ اڈا چندی پور کے قریب دن دہاڑے مرغی سپلائی کرنے والی گاڑی کو روک کر اسلحہ کے زور پر لوٹنے کی کوشش ناکام۔ مرغی سپلائی گاڑی کے ڈرائیور کے شور و واویلا کرنے پر ڈکیتوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ڈکیتوں کی فائرنگ سے اپنے ہی ساتھی کو فائر لگنے سے ایک ساتھی موقع پر جاں بحق اور جبکہ دوسرے ڈکیت کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ زخمیوں کو فوری خیرپور ٹامے والی ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بچیانہ کے تاریخی گاؤں کا مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے سانس، گلے اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ 3 کلومیٹر روڈ پر سفر کرنا انتہائی اذیت ناک ہو چکا ہے۔ مٹی سے لوڈ ٹرالوں سے گرنے والی مٹی گرد و غبار بن کر اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے راہگیروں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دھول مٹی اڑنے سے روزانہ متعدد حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔ منڈی احمد آباد کے نواحی گاؤں لکھو ملکانہ میں ضیاء اللہ وٹو نے معمولی تلخ کلامی پر اپنے ساتھیوں سے مل کر محمد یاسر کو فائر مار کر قتل کر دیا۔ مقامی تھانہ منڈی احمد آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اصغر علی رحمانی سے۔ جی اصغر علی رحمانی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں منڈی احمد آباد کے نواحی گاؤں لکھو ملکانہ میں، اور یہاں پہ ضیاء اللہ وٹو نے اپنے ساتھیوں سمیت مل کر محمد یاسر کو فیر مار کے قتل کر دیا، اور میرے ساتھ مقول کے بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ جی السلام علیکم۔ میرا بڑا برا جو نا لوڈ کراؤن جا رہا سی موٹر سائیکل سے، ان کا نام یاسر ہے، تے لوڈ کرا تے واپس آندا پیا سی۔ رستے وچ ایک سمان نام دا منڈا ہے، 10 سالہ بچہ ہے، ان دے نال موٹر سائیکل ٹکرائیے، تے ٹکراون تو بعد انہاں دی تلخ کلامی ہوئی، مطلب کہ انہاں ایک دوسرے گلاں باتاں کیتیاں نے۔ انہیں کہا میں تینوں ہنے آ کے دس لینا، وہ اپنے سامان گھر چلا گیا ہے، تے اتوں جا کے انہیں آدھے مامے دے بیٹے نوں کہا بھی ایسے کہ میرے انہاں نال منہ ماری یا مینوں گالاں کڈیاں نے۔ اپنے آپ نوں مطلب کہ گل انہیں بڑھا چڑھا کے انہوں نے دسیا بھی ایسے کہ میرے نال انہیں زیادتی کیتی، حالانکہ یہ گل کوئی بھی نہیں ہے سی انج دی۔ اس تو بعد انہاں ضیاء اللہ ان دا مامے دا بیٹا انہاں اپنے گھروں بندوقاں چک تے اسلحہ تے 4-5 آدمی جڑے نے اتنے آ گئے ساڈے گھر آ کے اتنے آ کے انہاں یاسر کو پوچھا بھی ہاں بھی تیرا نام یاسر ہے؟ انہیں ہاں جی میرا نام یاسر ہے۔ انہاں آدھا فائرنگ شروع کر دیتی ہے، تے فائرنگ تو بعد جڑے نا وہ فائر انہیں مارا ہے، اس تو بعد وہ نس گئے نے، فائر کرتے کرتے اتوں چلے گئے نے۔ میرے بچے نو آ تے گری مار گئے نے، فائر مارے نے، انہیں آ تے 4-5 جنے نے
थैले उन्हें भरे हुए हैं गोलियां दे बंदूक दे फैल जी बिल्कुल, ये मकतूल की वालदा मेरे साथ मौजूद थी। इनकी जो मामूली तल्ख कलामी पे ज़ियाउल्लाह ने अपने साथियों समेत बहुत शुक्रिया असगर अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पिंडी भटिया कोटनिक्का महकमा इरिगेशन का अमला और पाक आर्मी के जवान शिगाफ बंद करने में मसरूफ। 50 फीट चौड़ा शिगाफ अब 2 एकड़ पर मुहित हो गया। कई देहात ज़ेरे-आब आ चुके हैं। 16 घंटे बाद भी इंतजामिया शगाफ बंद ना कर सकी तो पाक आर्मी को बुलाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। पिंडी भटिया कोट नक्का के करीब गुज़श्ता रोज नहर जंग ब्रांच में 50 फीट से चौड़ा शगाफ पड़ गया था जो ताहाल बंद ना हो सका। नहरी पानी ने करीबी इलाकों में तबाही मचा दी। पानी करीबी देहातों में दाखिल हो गया। मुतासरा देहातों में खच्चा अन्ना, ठट्टा लंगर, जलार बस्ती और शामिल है। पानी से सैकड़ों एकड़ पर तैयार धान की फसल भी तबाह हो गई। 16 घंटे बाद इंतजामिया शगाफ बंद न कर सकी। पानी से मुतासिर अफराद को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, क्योंकि मकामी इंतजामिया टूटे बंद के शगाफ को बांधने में नाकाम रही और पाक फौज के जवानों अफसरान इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुँच गए। ताहम मीडिया का दाखिला बंद कर दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, टीवी टुडे, जलालपुर भटिया। सरगोदा की तहसील साहिवाल में एमपीए सरदार गुलाम अली असगर लाहड़ी के सुई गैस के इफ्तिताह के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस के कनेक्शन शुरू कर दिए गए हैं। देखते हैं सरगोदा से मेहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। तहसील साहिवाल में एमपीए सरदार गुलाम अली असगर लाड़ी ने 2 माह कबल सुई गैस का इफ्तिताह करके अवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा किया। सुई गैस के कनेक्शंस का इफ्तिताह करके साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के मीटर लगाए जा रहे हैं। जो हमारे एमपीए सरदार गुलाम अली असगर खान लाड़ी साहब ने इफ्तिताह किया था सुई गैस का 2 माह पहले, अब उसमें बाकायदा मुकम्मल तौर पे काम शुरू हो चुका है और इस वक्त मीटर घरों पर लग चुके हैं, काफ़ी घरों पर लग चुके हैं। और जिन मोहल्लों में पाइप लाइन बिछी हुई है, शहर का कोई भी मोहल्ला हो, तो मेरी उन सब से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पाइप लाइन बिछी है वो हमसे रब्ता करें, अपनी दरखास्तें दें और अपने मीटर लगवाएं। और इंशाअल्लाह ये थोड़ा सा काम स्लो ज़रूर है, जल्द ही उन इलाकों में काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही कैमरामैन के साथ मार उस्मान, टीवी टुडे, सरगोदा। रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मियां चन्नू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर के खुले हुए मेन होल शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गए। अहम सड़कों और अंदरूनी गलियों में मेन होल से ढक्कन टूट गए हैं। आपको मियां चन्नू से अपडेट कर रहे हैं कि शहर में बल्दिया उस्मा की नाक़िस कारकर्दगी के बायस मरकजी सड़कों के अलावा अंदरूनी गलियों से गटर के ढक्कन गायब हैं और नाक़िस सफाई की सूरत हाल है या ढक्कन टूट गए हैं और कई इलाकों में मरकजी सड़कों और अंदरूनी गलियों में गटर के मेन होल खुले पड़े हैं। शहरियों की जानिब से निशानदेही के बावजूद बल्दियाती इदारे गटरों पर ढक्कन लगाने का बंदोबस्त नहीं कर सके हैं। अस्तबल रोड पर वाटर फिल्टर मोहल्ला इस्लामाबाद कई दुकानों से मेन होल खुले हुए हैं, जिससे जानी नुकसान का खदशा भी है और ट्रैफिक हादसे का खदशा। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर जीशान से मुतालबा किया है कि गटरों के ढक्कन लगवाए जाएं, सफाई का बेहतरीन बंदोबस्त भी किया जाए। अपोजिशन के 16 अक्टूबर को होने वाले एहतजाजी जलसे को रोकने के लिए हुकूमती इक़दाम शुरू। शहर के दाखिली खारजी रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर पकड़ लिए गए। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पीडीएम के होने वाले जलसे में अपोजिशन जमातों के कारकुनों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। शहर भर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर मंगवा लिए गए हैं। लीगी कारकुनान और लीगी एमएनए के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 32 अफराद को नामजद किया गया है, जबकि 162 नामालूम अफराद शामिल हैं। जराये के मुताबिक आज रात से अपोजिशन जमातों के कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। नेशनल पार्क लाल सुहानरा में पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जिला बहावलपुर के जेरे इंतजाम सहाफत को तहफ़्फ़ुज़ दो सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि सहाफत मुल्क का चौथा बड़ा सुतून है, लेकिन इस पेशे से वाबस्ता सहाफियों को आज तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सका।
लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाने हुए सहाफ़ी अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, लेकिन इसकी कुर्बानी की कोई कीमत नहीं होती। मफाद परस्त और करप्ट लोगों को बेनकाब करने की पादाश में सहाफ़ियों पर तशद्दुद मामूल बन चुका है। सहाफ़ियों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। माजी की तरह मौजूदा हुकूमत भी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब पाकपतन में ओबाश दुकानदार ने सामान लेने आई 14 साला लड़की को अगवा करके मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। वुरसा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकपतन में एक और हवा की बेटी ओबाश की दरिंदगी का निशाना बन गई। मुतासरा लड़की को मेडिकल लीगल के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वुरसा ने मुलजिमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाना सदर में दरखास्त जमा करवा दी है। लड़की के वुरसा का कहना है कि मुलजिमान धमकियां दे रहे हैं, वज़ीर आज़म नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें। मियांवाली के थाने में गैर कानूनी हिरासत के दौरान बुजुर्ग खातून की हलाकत, DPO का नोटिस, SHO समेत 3 अफसरान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मियांवाला के थाना हरनवाली में गैर कानूनी हिरासत के दौरान 60 साला मंजूरा बीबी की हलाकत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज ने फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जबकि DSP पिपला की मुद्दत में SHO तफ्तीशी ऑफिसर और मेहरर थाना हरनोली के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। DCO ननकाना साहब राजा मंसूर की खसूसी हिदायत पर डायलिसिस सेंटर में मरीजों के लिए सहूलियात फराहम करने की जिम्मेदारियां बानी डायलिसिस सेंटर अंजुमन ताजरान सरपरस्त आला मियां ताहिर रफीक को सौंप दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सारा लुकलूनी का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की खुसूसी हिदायत पर डायलिसिस सेंटर मियां ताहिर रफीक के हवाले कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि वो पहले की तरह समाजी जज्बे के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर पर हमारे साथ मिलकर वो मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करके कौमी फरीजे के साथ साथ अपनी आखिरत भी संवारेंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजाहिद नवाब ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने में अंजुमन ताजरान के सरपरस्ते आला हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे। पिंडादन खान महकमा वापटा ने टीवी टुडे की खबर पर एक्शन लेते हुए फौरी काम शुरू कर दिया। पिंडादन शहर के महल्ला पुरानी तहसील में जहां से कुछ दिन कबल टीवी टुडे पर वापटा की खतरनाक और लटकती तारों की खबर नशर करके आला हुकाम की तवज्जो दिलाई गई, जिस पर एक्शन वापटा पिंडादन रशीद सरकी ने फौरी एक्शन लेते हुए काम शुरू करा दिया है। इस हवाले से मकामी अफराद ने टीवी टुडे का शुक्रिया अदा किया और महकमा वापटा की काविश को सराहा। बदबख्त बेटे ने जमीन के लालच में 80 साला बाप को कत्ल करके घर के करीब लाश गड्ढे में दबा दी। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार करके उसकी निशानदही पर लाश बरामद कर ली है। मुलजिम का एतराफ जुर्म भी सामने आ गया है। थाना सदर और अहमदपुर शर्किया के इलाके किला में बदबख्त बेटे इलियास ने अपने 80 साला बाप मोहम्मद अकबर को 1.5 माह कत्ल करके लाश गड़ा खोद कर जमीन में डाल दी। बेटे की मुद्दत में अगवा का मुकदमा भी बेगुनाह अफराद के खिलाफ दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने इसके बेटे इलियास को हिरासत में लेकर तफ्तीश की, जिस पर मुलजिम ने बाप को कत्ल करने का एतराफ जुर्म भी किया और इसकी निशानदही पर पुलिस ने मकतूल के घर से थोड़े फासले पर जमीन से लाश बरामद कर ली। लाश की बाकियात को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, जायदाद की खातिर सगी नानी अपनी मरहूम बेटी के बच्चों की दुश्मन बन गई। बच्चों और चचा की आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील करती है। जी हाँ, जायदाद की खातिर सगी नानी अपनी महरूम बेटी के बच्चों की दुश्मन बन गई है। बच्चों को अगवा करके लेकर जाने की कोशिश। बच्चों अब्दुल रहमान, सानबाल और उस्मान का कहना है कि हमारी माँ बाप फौत हो चुके हैं। हमारी नानी ताज माई को मुल्तान रहती हैं, हमें ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहती हैं, हम पर बहुत जुल्म करती हैं, जबकि हम अपने चचा रमज़ान के साथ रहना चाहते हैं। एक हमारा छोटा भाई सलमान, उसने अगवा कर लिया है, वो भी हमें वापस दिलाया जाए।
कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी ने कहा है कि तरक्कियाती मंसूबों को बरवक्त और आला मयार के मुताबिक तकमील के लिए पहुंचाना चाहिए। गैर जरूरी इल्तवा से मंसूबों की लागत में इजाफे से गुरेज के लिए तमाम तर जरूरी इकदामात बरवक्त बरोए कार लाए जाएं। इजलास में डिवीजन भर के 41 जारी तरक्कियाती मंसूबों का जायजा लिया गया। महकमा हाईवेज रहीम यार खान की नजरसानी शुदा 2 और बहावल नगर की 1 स्कीम की मंजूरी दी गई। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की 1 स्कीम, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 16 और चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 21 नजरसानी शुदा तरक्कियाती स्कीमों का जायजा लिया गया। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में सीपीओ मुल्तान की रुकन कौमी असम्बली के हमरा खुली कचहरी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मसाइल के अंबार लगाती है। सीपीओ मुल्तान का कहना था कि कोरोना की वबा के बायस तवील अरसा खुली कचहरियां नहीं लगा सके। अब इंशाल्लाह हर माह 2 मरतबा जलालपुर पीरवाला में खुली कचहरियां लगाएं और आवाम को हर सूरत इंसाफ फराहम करेंगे। रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद कासिम नून ने कहा कि खुली कचहरियां आवाम को इंसाफ फराहम करने का आसान जरिया है। इंशाल्लाह आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। आवाम ने सीपीओ मुल्तान से मुतालबा किया कि जलालपुर पीरवाला सर्कल में नफरी ज्यादा दी जाए और गश्त के लिए नई गाड़ियां भी दी जाएं। शेखुपुरा में कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाली बच्ची बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दी। शेखुपुरा अगवा होने वाली बच्ची को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। सब इंस्पेक्टर यासीन कंबो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्ची को उसके खालू मुलजिम फैसल शाह से बरामद करके बच्ची की वालिदा रुबाब के हवाले कर दिया गया है। 3 साला बच्ची नयाब ज़ाहरा के घर वालों ने शेखुपुरा पुलिस और पंजाब पुलिस के हक में जिंदाबाद नारेबाजी लगाई। गुजर खान में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन चंद घंटों की दूरी पर रह गए हैं। कल सुबह पोलिंग का आगाज होगा जिसमें 5144 रजिस्ट्रार वोटर अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। गुजर खान की 30 साला तारीख में मरकजी अंजुमन ताजरान के इलेक्शन कल पहली बार होने जा रहे हैं। दोनों ग्रुप्स की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों की ताजिर तंजीमों और सियासी समाजी शख्सियात की हिमायत दोनों ग्रुप्स को हासिल है। ताजिर इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से सदारत के लिए मिर्जा वकास अकबर, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर सादत हुसैन, जबकि चौधरी इकबाल ग्रुप की जानिब से राजा मोहम्मद जवाद सदर और शहादत हुसैन बट जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। शहर में 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर 5144 ताजिर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। कल शाम इलेक्शन बोर्ड की जानिब से हतमी नताइज के ऐलान पर मामूल होगा। अंजुमन ताजरान गुजर खान की सदारत का ताज किसके सर सजेगा? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जिला नौशहरों फिरोज के छोटे बड़े शहरों में सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। रेट लिस्ट रद्दी का टुकड़ा बन चुकी है और इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आने लगी है। अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। सब्जियों की खरीदारी अवामुल नास की पहुंच से बाहर हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि सब्जी फरोश मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए महंगे दामों सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। परचून सब्जी फरोश दुगना कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और अशियाए खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। सिंध भर में कपास की फसल तैयार हो गई है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी पास्को सेंटर न खोला गया। काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। काश्तकारों का कहना था कि हमने लाखों रुपए खर्चा किया जिसमें बीज, खाद और मुख्तलिफ अद्वियात शामिल हैं और अपनी फसल को बेहतर बनाया, लेकिन जब हमारी फसल तैयार हो चुकी तो राइस मिल मालिकान की जानिब से चावल की कीमत इंतहाई कम लगाई गई, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी है। सिंध हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि 1 मन चावल का रेट 1400 से बढ़ाकर 1500 तक रखा जाए ताकि हम काश्तकारों को भी फायदा पहुँच सके। खबरें और भी हैं या वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे।
ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں۔ خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ کے جزائر پر وفاقی تعمیرات کے خلاف سندھ بھر میں ترقی پسند پارٹی کی جانب سے ہڑتال، کاروباری مراکز بند، شہریوں سمیت کاروباری شخصیت نے بھی مکمل طور پر حمایت کرتے ہوئے اپنے کاروبار بند کر دیے۔ سندھ کے ساحلی پٹی اور سمندری جزائر پر وفاق کی جانب سے تعمیرات کے خلاف سندھ بھر میں قوم پرست جماعت سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے ہڑتال دھڑکی سمیت سندھ بھر کے تمام کاروباری مراکز بند کر دی۔ کارکنوں نے تمام کاروباری مراکز بند کروا دیے۔ وائس چیئرمین ایس ٹی پی کا کہنا تھا کہ وفاق نے آئین سے انحراف کر کے آرڈیننس کا اجرا کر رہی ہے۔ سندھ کے جزائر اور ساحلی صوبے حکومت کے زیر انتظام ہیں، وفاق کے غیر آئینی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹنڈوالہ یار میں 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء اکرام، محکمہ وابٹہ اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایس ایس پی ٹنڈوالہ یار رخسار احمد نے بتایا کہ ضلع بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسوں اور جلوسوں میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور مکمل سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ جلوسوں کے دوران راستوں پر چلنے والی ٹریفک کو ضابطہ میں لایا جائے گا۔ سندھ حکومت کے تعلیم کے بہتری کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تحصیل گھوڑا باری میں اسکول کی بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بچے گزشتہ 14 سالوں سے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے صادام حسین سے۔ جی صادام، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں سر موجود ہوں ٹھٹا کے شیر ور کے قریب مولوی می وسائیو پرائمری اسکول میں مسلسل 15 سال سے جو بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہمارے یہاں کے گاؤں والوں سے بات چیت ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ 15 سال سے ہم نے جو ہے ہمارے بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے ضلع انتظامیہ کو بھی کئی مرتبہ اپیل کی ہے، لیکن تاحال ابھی تک ہمیں کوئی بھی اسکول کی عمارت نہیں بنا کے دی گئی ہے۔ انہوں نے جو ہے حکومت سندھ سے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ ہمیں جو ہے اسکول کی پکی بلڈنگ بنا کے دی جائے۔ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ٹنگوانی کا نواحی گاؤں تاج بکھرانی میں پرائمری گرلز اسکول کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ بلڈنگ کی چھت بوسیدہ حالت میں، کئی بار شکایت کرنے پر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ہادی بخش سے۔ ہادی بخش، بتائیے گا انتظامیہ نے ابھی تک کوئی اقدامات اٹھایا؟ آج اس وقت میں موجود ہوں ٹنگوانی کا ایک نوائی گاؤں ہے تاج محمد بکرانی، وہاں پر ایک گرلز پرائمری اسکول ہے جو کہ کئی عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو آتے ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، لیکن بلڈنگ کا جو صورتحال ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ کئی سالوں سے ہمارے علاقے مکینوں سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے بلڈنگ خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ کئی بار اعلیٰ حکام کو ہم نے بذریعہ میڈیا یا ایسے آگاہ کیا، لیکن کوئی بھی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے تعلیم کے لیے اربوں روپے تو خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں کوئی بلڈنگ اویلیبل نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر تعلیم سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تحصیل میرپور ساکرو میں پرائمری اسکول 25 سالوں سے بند دیواریں گر گئی ہیں۔ اساتذہ گھر بیٹھے سالوں سے تنخواہیں لینے لگ گئے، بچوں کا مستقبل تباہ، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میرپور ساکرو سے ہمارے نمائندے ذوالفقار علی ساٹی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मीरपुर साकरों के टाउन बाबड़ा में। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल आज से 25 साल कबल उस वक्त के MPA गुलाम कदर पलीजो ने इफ्तिताह किया था, जबकि 25 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इस स्कूल का कोई तामीराती काम ना हो सका। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे उन्होंने भी स्कूल आना छोड़ दिया। इसके जो दरवाजे खिड़कियाँ वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। जबकि हमने यहाँ पे जो मकामी लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि इस स्कूल का जल्द से जल्द जो है ना तामीराती काम करवाया जाए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बरदान में नाकिस फूड के खिलाफ डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ पॉइंट्स दूध के नमूने लेकर टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से मुतअद्दिद को नाकिस दूध बेचने पर सील कर दिया गया है। कार्रवाइयों में मुतअद्दिद दुकानों को नाकिस कारकर्दगी पर भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि कई रेस्टोरेंट से एक्सपायर तेल भी बरामद किया गया। दीगर के खिलाफ एक्सपायर लाइसेंस को रीन्यू करवाने के लिए वार्निंग भी दे दी। नाज़रीन, आज दुनिया भर में बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से सक्खर में भी एक पुरहुजूम रैली निकाली गई है, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सक्खर प्रेस क्लब पहुंची है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं रैली में मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल अराए। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर जो एक UC 13 से जो एक वॉक निकाली गई है। इस वॉक का मकसद है जो बुजुर्गों के हकूक़ है उनकी पासदारी के लिए, उस हवाले से जो एक वॉक निकाली गई। सक्खर प्रेस क्लब पर जो है सिटीजन वेलफेयर एक्ट 2014 जो है उस बिल पर अब तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ जा रहा। इस रैली में सक्खर प्रेस क्लब के बाहर सियासी समाजी तंजीमात के रहनुमाओं समझ सियासी अफसरान ने भी जो है कसीर तादाद में शिरकत की है। इस वक्त भी रैली के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते। बताइएगा आज की रैली का मकसद क्या है? देखें जी, पूरी दुनिया में बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक्टूबर का जो महीना है ये पूरी दुनिया में बुजुर्गों के एहतरामन उनके साथ सेलिब्रेट किया जाता है। सक्खर के शहरियों ने, सक्खर के वकला ने, सक्खर के डॉक्टर्स ने, सक्खर में मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी वर्कर्स ने आज जो है बुजुर्गों के एहतरामन में जो है कि एक रैली निकाली थी। आपने देखा कि सैकड़ों लोग इसमें मौजूद थे और सबका यही मुतालबा था कि पाकिस्तान के आइन में जो बुजुर्गों को हकूक़ दिए गए सन 2014 में, जो सिंध असम्बली से बुजुर्गों के लिए उनके मकासद के लिए उनको सहूलियात देने के लिए जो बिल पास किया गया उस पर अमल करवाया जाए और जो पाकिस्तान के आइन में बुजुर्गों को हकूक़ दिए गए उन पर अमल करवाया जाए, ताकि जो है कि बुजुर्ग ज़्यादा से ज़्यादा उस सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल, इस रैली का मकसद एक तो आज बुजुर्गों का आलमी दिन है, उन्हें खराज तहसीन पेश करना है, और दूसरी जानिब जो हुकूमत में जो आइन में जो है वो बुजुर्गों के लिए हकूक़ दिए गए हैं, जो बिल पास किए गए हैं उन पर भी जो है मुकम्मल अमल दरामद कर। खैरपुर में एक ही रात में डकैती की 3 वारदातें। डाकू लाखों रुपए नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस अमन और अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल न कर सकी। खैरपुर ए सेक्शन थाने की हदूद नवीद कॉलोनी में ठेकेदार रोशन अली शेख को नामालूम मुसल्लह अफराद घरों वालों में समेत यरगमाल बनाकर नकदी रकम, जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। दूसरी वारदात में करताल कमार को यरगमाल बनाकर लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर नवाब शाह का शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और स्कूलों का दौरा, अशय खुरनोश के रेट्स का जायजा लेने के साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल का जायजा भी लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नवाब शाह शेराज अहमद लगारी ने अवामी शिकायत पर शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का हंगामी दौरा किया और अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लेकर मुकर्ररा रेट से ज्यादा वसूल करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शेराज अहमद लगारी का कहना है कि शहरियों को रिलीफ देना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही अवाम को लूटने वाले दुकानदारों को किसी सूरत मुआफ किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर का दुकानदारों को वार्निंग देते हुए कहना था कि अशिया खुरनोश की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खैरपुर सिंध में महकमा आपाशी के मुलाजमीन का बुनियादी मसाइल हल कराने के लिए इरिगेशन ऑफिस खैरपुर से प्रेस क्लब खैरपुर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने खैरपुर प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने सिंध हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर
21 अक्टूबर तक हमारे जायज़ मसाइल हल ना हुए तो फिर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। उनका कहना था कि महकमा आबपाशी के मुलाजिमीन के जायज़ मसाइल जिनमें सुनकर फौरी हल किए जाएं, जिनमें कोटा, टाइम स्केल, सेहत कार्ड, ग्रुप इंश्योरेंस समेत मसाइल हल ना होने की वजह से मुलाजिमीन सख्त परेशानी का शिकार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।